कुछ समय से हम एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, कोविड-19। नाउ व्हाट इफ आई से दैट हम सिर्फ एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, देयर आर पीपल अमंग्स अस जो दो पैंडेमिक झेल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी एंड डायबिटीज। यस, ओबेसिटी इज अ पैंडेमिक जो हम पैंडेमिक नहीं मानते, पर हमारे बीच वैसे लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि वो किस तरह से इसको झेल रहे हैं। 4th March every year is celebrated as World Obesity Day, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है so that we can spread awareness among people कि ओबेसिटी को कैसे ओवरकम करें, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, और साथ में मोटापा और मधुप्रमेह इन दोनों के साथ कैसे फाइट करें। तो आज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम शुरू करने जा रहे हैं एक संवाद, मोटापा और मधुप्रमेह, दैट इज ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। वी हैव सम रियल लाइफ हीरोज विद अस जो कि हमारे साथ इसके बारे में बात करेंगे, अपनी जर्नी शेयर करेंगे, बट अलोंग विद देम वी आल्सो हैव सब्जेक्ट मैटर experts with us. We have Dr. Banshi Sabu. Dr. Banshi Sabu is Chief Diabetologist and Chairman of DiaCare, Diabetes Care and Hormone Clinic at Ahmedabad, and has 24 of years of experience in treating diabetes, that is madhupramesh, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। We have Dr. Mufazzal Lakdawala. Dr. Mufazzal Lakdawala, popularly known as Dr. Mufi, specializes in bariatric and gastrointestinal surgery. He is a director of surgery department of general and minimal access surgical science at Sir H. N. Reliance Foundation Hospital and Research Center, Mumbai. He is also the co-founder and chief surgeon at Digestive Health Institute, Mumbai. We also have Dr. Mohit Bhandari with us. Dr. Bhandari is bariatric and laparoscopic surgeon and is the founder and director of bariatric surgery at Mohak Bariatrics and Robotics, Indore. Dr. Bhandari is also clinical professor, Department of Surgical Gastroenterology at Sri Aurobindo Medical College, Indore. He pioneered novel bariatric procedures. Along with him, we have Dr. Mahendra Narvaria. Dr. Mahendra Narvaria is one of the pioneers of bariatric surgery in India. He is a surgical gastroenterologist and a laparoscopic surgeon. He is the head of surgical gastroenterology at Asian Bariatrics, and we have Miss Arya Singh with us. Miss Arya Singh is the head of Department Diabetes, Asian Bariatrics Hospital, and specializes in clinical nutrition, bariatric nutrition, nutritional biochemistry, dietetics, and food science. इनके साथ हमारे साथ कुछ और हमारे रियल लाइफ हीरोज भी जुड़ रहे हैं, बट उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ हम आगे बढ़े उससे पहले I would like to call on Mr. Prashant Krishnan, the Senior Director at Medtronic. Medtronic is supporting this cause and helping us create awareness around this disease state. So, Sir Prashant Krishnan ji, आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप एड्रेस करेंगे। Aji Pooja, thank you. It's an important point that we want to try and talk about today. Obesity is a global problem, and close to 800 million people are suffering with this particular issue globally. And India में, especially because हमारे genetics, हमारी predisposition, हमारी diet, हमारी lifestyle ऐसी है कि ये problem और भी बड़ी है। और सबसे बड़ी challenge ये है इस issue का कि not only are we actually suffering with this issue, but the patients who are suffering from this issue actually have to face social stigma. They have to be kind of kept away. They kind of stay away from the public domain, and that's why उनको support करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि इससे एक बेहतर तरीका अवेलेबल है ताकि वो अपनी जिंदगी को सुधार सकें. We definitely want everybody to be made aware. That's one of the initiatives that is extremely important for us. And क्योंकि ये roots बहुत complex है और ये issue बड़ा complex है और obesity के साथ साथ eventually comorbidities आती हैं, diabetes being one of the preliminary ones of that. ये issue को हमको address करना चाहिए, हमें patients को aware करना चाहिए ताकि ये जो challenge है उससे वो बाहर निकल सके. ये टाइम आ गया है कि हम इसे चेंज करें. वर्ल्ड ओबेसिटी डे के अवसर पर मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली वी शुड रियली गेट टुगेदर एंड एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट राइट नाउ. थैंक यू. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली. एक चीज जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, इस बार का वर्ल्ड ओबेसिटी डे का जो थीम है, जैसे आपने बताया एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि कोई एक बंदे के काम करने से सारी चीजें नहीं होगी. Everybody together will have to
act on this, and then only we can overcome this problem. Now, as I was talking about some real life hero who are joining us today, मैं उनमें से एक हीरो को हमारे साथ यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी. Mr. Shishir Prakash is with us. Mr. Prakash is 41 years old now, and he is an advocate by profession. And of course, because of his profession, उनको काफी सारा वक्त कोर्ट में बिताना पड़ता है और बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए उन्हें. His weight prior to surgery was 153 kgs and BMI was 43.8. He underwent bariatric surgery 5 years ago. So let us see how he is doing now. Mr. Shishir Prakash, कैसी है आपकी लाइफ पहले और बाद में? क्या-क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? Best decision जो मेरी लाइफ का है that I had taken when I underwent this surgery. And मेरे लिए life saving है, and I started to gain weight in after class 10th. So a very long period of my life हमारा weight बढ़ता ही जा रहा था. I used to reduce it by 5-6 kgs. Again it used to just रुकता ही नहीं था, एक vicious circle होता है. And then when I turned 29, I was diagnosed with type 2 diabetes और dyslipidemia, cholesterol, blood pressure. तो सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी और वेट रुकता ही नहीं था किसी भी तरीके से. तो आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. सोशल स्टिग्मा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट जाने में फिर हमको उसमें L5S1 मतलब बैक की प्रॉब्लम हो गई, डिस्क बल्ज हो गया, तो चलने में दिक्कत, सांस फूलना, और बच्चों के साथ मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, ना साइकिल चला पा रहे हैं. आई वाज़न्ट एबल टू ट्रैवल विद देम. So when was the point when you decided to take a bariatric surgery option? I just found a very good doctor. So he advised me and advised me correctly, and I said कि finally okay, you are the expert. तो उन्होंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा. मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, सिर्फ मल्टीविटामिन हम खाते हैं. बाकी आई ईट मोर, आई ईट गिल्ट फ्री, सब चीज खाते हैं थोड़ा थोड़ा. एंड आई स्टार्टेड टू कुक आल्सो. और पहले क्या होता था कि अब आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हैं. ये ऐसे जयपुर गए तो होटल में बैठे हुए हैं, बाकी लोग घूम करके आए तो आप क्या कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं. और टू कंफर्ट योरसेल्फ, टू कंफर्ट योर सेंसेस. कपड़ा आप पहन नहीं पा रहे, साइकिल आप चला नहीं पा रहे, स्विमिंग आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है. फ्लाइट में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको एक्सटेंडर मांग रहे हैं. ओवरऑल मूवमेंट में दिक्कत होती है. आई ग्रू इन माय प्रोफेशन एज वेल बिकॉज ऑफ the activity, and I'm active now. I can travel anywhere. I mean, I'm very very happy, very happy. That's amazing. And I think आपका एक्सपीरियंस काफी सारे लोगों को आज इंस्पायर करेगा. 25 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ एक बार में आराम से. Wow. That I did not do. I mean, बचपन में छोड़ करके. वाह, क्या बात है. अच्छा, तो अभी आपका डायबिटीज का स्टेटस क्या है? Are you still suffering? जिस दिन से मैं सर्जरी से बाहर आया हूँ, मैंने आज तक दवाई नहीं खाया. अभी 7 के आसपास है HB1AC, और उसके लिए डॉक्टर जिनको हम कंसल्ट करते हैं उन्होंने बोला है कि अगर 7 क्रॉस करेगा तो शुरू करेंगे, अदरवाइज वो भी मेरी वजह से ड्यू टू दिस पैंडेमिक, क्योंकि घर पे बैठ गए ज्यादा, उस तरीके से एक्सरसाइज जिम छूट गया जी, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. अदरवाइज तो 6.5 6.6 रहता था, मतलब बॉर्डरलाइन डायबिटीज. या ये बहुत अमेजिंग चीज है. कोई भी दवा नहीं खाता हूं मैं. आई हैव नो ब्लड प्रेशर, आई हैव नो डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया ठीक हो गया. मेरा ग्रेड 3 फैटी लीवर था, दैट इज नॉट नॉर्मल. तो मतलब आपकी लाइफ के काफी सारे हेल्थ इश्यूज सर्जरी के बाद सॉल्व हो गए. जी जी जी. और वो डिस्क बल्ज भी ठीक हो गया बहुत. मतलब पहले तो मुझे बेल्ट लगानी पड़ती थी. अच्छा. क्योंकि बेली सेंट्रल फैट था, पेट पे सबसे ज्यादा वेट था जी. तो आई मीन आई एम वेरी 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 हैप्पी, वेरी हैप्पी. That's amazing. Now I wear XL. Off the shelf I buy clothes. My waist is now 37, 38, so I get jeans. So I was about to come to that कि आपका तो पूरा wardrobe change करना पड़ा होगा. जी 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 जी. I'm so happy. Yeah. All right. So जैसे आप खाने की बात कर रहे थे, that आप now you have also started cooking, और आप खाना बना भी लेते हैं, पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं. जी जी. So what do you eat now? बाहर जाकर के मैम हम सैलेड, जैसे गाय को मालूम होता है कि तंबाकू का पत्ता नहीं खाना है और चारा खाना है, तो जब ये सर्जरी होती है तो बॉडी को फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रीन्स की तरफ, जो ब्रोकली मुझे कभी मैं सोच भी नहीं सकता था मैं ब्रोकली खाऊंगा. नाउ आई हैव डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट. ग्रीक सैलेड, सीजर सैलेड, ड्रेसिंग्स अलग से मंगा लिया, सूप्स, एवरीथिंग. अवॉइड ग्रेन्स आउटसाइड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग.
हाँ. बाकी घर का खाना है ना, अगर लोकल है तो ऑफिस में अपना घर का खाना मैं लेकर के जाता हूँ। आई ईट वेल, जितना खाना चाहिए नॉर्मली अब उतना खाते हैं। अमेजिंग। जी तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं, मुझे हमारे न्यूट्रिशन से बात करनी है, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो सर्जरी वाला एक्सपीरियंस है, वाज जी, इट रियली डिफिकल्ट और वो इजी था, कैसा था वो एक्सपीरियंस? वेरी इजी। आई एम नीडल फोबिक, मुझे तो सुई से भी डर लगता है। ओह, मैंने हम डॉक्टर साहब से कहा मैं तो सुई देख के डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही इंजेक्ट करूंगा आपको, एक ही कैनुला लगेगा, उसी से आपका सब हो जाएगा। क्या बात है। तो तो वैसे मतलब आपके जैसे काफी सारे लोग होंगे जो सर्जरी से शायद नाम से ही डर जाते होंगे। लेकिन इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है, और 150 किलो से कोई हीरो ही कम कर सकता है अपना वेट एक्सरसाइज से। बहुत 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 रेयर, क्योंकि आई हैव ट्राइड, आई रिड्यूस 15 केजीज। अच्छा, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जी। तो फिर आपका वो विशेष सर्कल है कि 15 किलो कम किया फिर 20 किलो बढ़ गया, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। एंड देन मेरी तो किडनीज में भी प्रॉब्लम आने लगी थी, यूरिया, प्रोटीन, ये सारी चीज, बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे, तो सारा रिवर्स हो गया। एवरीथिंग इज रिवर्स। आई मीन सो फार हर साल हम अपना कराते हैं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। Yeah. Your family also must be very happy. Yes, yes, yes. My kids are happy because I mean I dress like them. I cycle with them. I missed out on a lot of things. तो अब तो वो पीछे रह जाते हैं, मैं उनसे पहले पहले कि यहाँ चलो वहाँ चलो। झूले पे So it's new avatar of yours, I can say. I really love myself. I love myself more. I have always loved myself. मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं थी, but yes, of course, with such a big belly and मूवमेंट में दिक्कत, सांस फूल रही है, कोर्ट में पहुंचे तो पहले तो सांस संभालें अपनी, एंड देन हाई कोर्ट हम जाते हैं तो वहां पे मुझे पहले प्लान करना पड़ता था हाउ टू रीच द कोर्ट। अगर 10 o'clock है तो मैं यहाँ से निकल कर, क्योंकि बैक में दर्द होता था कि यहाँ से मैं 50 मीटर्स चलूंगा तो वहां पे एक चौकीदार का बेंच है, आई विल सिट देयर फॉर 5 minutes। आई हैव टू प्लान माय रूट जस्ट टू रीच द कोर्ट, क्योंकि एक साथ उतना हम 100 मीटर्स भी नहीं चल पा रहे थे। अब तो आई वॉक 6 kilometers 8 kilometers very easily. That's amazing. 10 also, but I mean there's no problem now. 8-10 फ्लोर चढ़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या बात है। मतलब आप यहाँ पर मुझे ही बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं अदरवाइज, और आपकी ये बात सुन के काफी ज्यादा और लोग इंस्पिरेशन लेंगे। तो उस बात पे आप कैसा फील करते हैं that you become inspiration to so many people who are facing the problem which you had? I would certainly advise that जिसका वेट बहुत ज्यादा हो गया है, और हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं कि वेट अंडर 100 and वेस्ट अंडर 40 for everyone who is above 40. Right. तो अभी वेट मेरा थोड़ा सा ज्यादा है, but otherwise I'm absolutely fine. And your family is very happy. That's a good part. Yes. तो दोनों पेरेंट्स मेरे डायबिटिक थे, तो डायबिटीज हमको जेनेटिक्स से मिला, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जेनेटिक्स से भी ट्रांसफर होता है, बट दिस इज द बेस्ट डिसीजन and I took that at the right time, and I was 36, now I'm 41. तो मुझको 2 बार कोविड भी हुआ, लेकिन कोई एसिम्प्टोमेटिक था, जबकि बहुत सारे लोगों ने अपने डियर वंस को खो दिया। और जिनका वेट ज्यादा था, मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे एडवाइस किया, उन्होंने खुद नहीं कराया डर के मारे, उनकी डेथ हो गई। अरे, मुझे भेजा, और इसी से बस क्योंकि वेट ज्यादा था तो सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रीदिंग इशू, वैसे ही लंग्स कॉम्प्रोमाइज थी। तो मेरे लिए तो एवरीथिंग, आई एम वेरी 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 हैप्पी। So लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए, कोविड से भी आप बच गए ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो गई, हेल्दी खाना पीना हो गया। जी, हेल्दी खाना पीना हो गया, मल्टीविटामिन्स ले रहे थे, विटामिन डी हमेशा चेक कराते हैं, विटामिन डी डिफिशियंसी नहीं हुई, तो और B12 लेते हैं, तो जितने भी विटामिन्स थे वो सारे इंटैक्ट थे, इसलिए मोस्टली सिम्प्टोमेटिक निकल गया। इंडियंस आई हैव हर्ड एंड आई हैव रेड, बिकॉज हम पढ़ते भी रहते हैं कि विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन कोविड की, जिसका डेफिशिएंसी है उसको ज्यादा उसके सिम्टम्स आ रहे थे। जी, आई रेड, आई डोंट नो, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, दे वुड बी नोइंग मोर, बट यस आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन नाउ। दैट्स अमेजिंग। बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी,
और अगेन घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि जैसा खाते हो वैसा बॉडी आपका मेंटेन होता है। तो डाइट की बात करें, आई वांट टू स्पीक टू आवर न्यूट्रिशनिस्ट मिस आर्या सिंह। मैम, आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद खाने पीने की चीजों में क्या फर्क आता है, कितना हेल्दी कितना अनहेल्दी, व्हाट विल यू से? आई थिंक शिशिर जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ही इज ईटिंग एवरीथिंग, एंड उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाउ ही इज ईटिंग नॉर्मल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैडम हम नॉर्मल कब से खाएंगे? तो ये डेफिनेशन जरूरी है समझना कि नॉर्मल अभी नहीं है। अगर ये नॉर्मल था तो हमारा वेट इतना नहीं होता। राइट, ठीक है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वी कैन गो फॉर अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फूड दैट वी टॉक अबाउट। तो अगर मैं उसको एक फेज वे में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो मेडिकल मील प्लान है हमारा बेरियाट्रिक के बाद, वो हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ रिकवरी फेज, जो सर्जरी के जस्ट बाद होती है। वो लगभग 3 to 8 वीक्स के लिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी प्रोसीजर आपने ऑप्ट करी है। फाइन। तो उसको भी हम लोग टेक्सचरल चेंजेस देते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द चॉइस, रादर एक हम थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स, हाई फैट और आप कहे तो शुगरी फूड को थोड़ा सा अवॉइड फेज में रखते हैं। अदरवाइज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ प्यूरी टू अ सॉफ्ट फेज, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस जो मैंने आपको बताया कि फेजेस जो हम सर्जरी के रखते हैं, तो विद इन 2 months वी कैन गेट बैक टू अ नॉर्मल फूड। ओके, अब जहां पे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वेट लॉस ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी कराई 1 साल में आपने वेट लॉस कर दी एंड देन यू आर डन। इट इज अ कंप्लीट मॉडिफिकेशन जो हमको चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी नीड टू स्टिक टू, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जेन्युइन रूल्स है। जैसे हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। तो एक बारी में बहुत ज्यादा नहीं खाना है, स्मॉलर मील्स लीजिए। फ्रीक्वेंसी बहुत लंबी मत रखिए। यूजुअली लोग सुबह से शाम में 2 बारी खाते हैं। वी डोंट हैव टू डू दैट। स्लोली खाना खाइए, जल्दीबाजी में खाना मत खाइए, च्यू करके खाने को खाइए। सॉलिड्स और लिक्विड्स को साथ में मत लीजिए, क्योंकि वो आपकी डाइजेशन को हिंडर करता है। फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाइड्रेशन का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। फ्रॉम द वेरी डे ऑफ सर्जरी से आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। देन कमिंग ऑन टू सेल्फ मॉनिटरिंग, आई थिंक ये हम सबको करना चाहिए कि आजकल काफी सारी मैं देखती हूँ एप्लीकेशंस आई हुई हैं अबाउट लॉगिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो आपने सुबह से शाम तक आपका क्या एक्टिविटी रहा है, आपने क्या खाया है, कितनी हाइड्रेशन लेवल रही है, ये आपको हेल्प करेगा मैनेज अप करने में कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ जज फॉर यू। कमिंग ऑन टू जैसे मैंने आपको बोला, सिंपल कार्ब्स, हाई फैट फूड, वी कैन से दैट हम एक चीट मील को रखेंगे इन द लेटर स्टेज आफ्टर 2 to 3 months ऑफ सर्जरी, बट इट शुड नॉट बी वेरी फ्रीक्वेंट। ओके, जैसे इन्होंने बताया शिशिर जी ने कि वी आर ईटिंग एवरीथिंग, ही इज टेकिंग होममेड फूड, बाहर भी जाते हैं, बट ही इज अवॉइडिंग सर्टेन थिंग्स। बेरियाट्रिक इज जस्ट अ पुश। ओके, इट इज हेल्पिंग यू टू कम टू योर नेचुरल वेट, बट दैट डजंट मीन कि आपको कोई वरदान मिल गया कि यू कैन नेवर गेट दैट बैक। तो आपको मेहनत करनी है, एंड वंस यू गॉट अ न्यू लाइफ, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए आई थिंक इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग व्हाट मिस्टर शिशिर हैज सेड, दैट ही हैज गॉट अ कंप्लीटली चेंज्ड लाइफस्टाइल. So he needs to be with it, and we all needs to be with it. And adding at the end is supplementation is very, very important. As you we'll be talking about surgeries. So there are mainly 2 things which is happening after surgery. एक होता है आपका restriction in the food, quantity हमारी कम हो जाती है. Okay. And the second thing is malabsorption. जो बाईपासिंग करते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्बेबिलिटी कम होती है, तो इसके कारण आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते हैं. तो फूड के साथ आपको कुछ सप्लीमेंटेशंस लाइफ लॉन्ग लेनी होती है. अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच मिस आर्या, ये बहुत वंडरफुल इंसाइट देने के लिए. और हम जैसे डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे हम डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर बंशी साबू से. सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि ये टाइप 2 डायबिटीज लेमन के लिए है क्या, और ओबेसिटी से डेवलप होता है ये टाइप 2 डायबिटीज, या पहले से होता है, या कैसे होता है ये? First of all, thank you, Pooja, for inviting me on this forum. Here we have bariatric surgeon and the patients who have gone for bariatric surgery, and we have bariatric nutritionist also. So thank you for inviting me on this forum.
टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज दो डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज है। डायबिटीज के पेशेंटों के लिए एक प्राइमरी ड्राइवर कह सकते हैं हम ओबेसिटी। अनलकीली इंडिया के अंदर इवन कुछ पेशेंट्स जो बहुत ओबीस नहीं है, हमारे को यहाँ बीएमआई 25 या 27 के ऊपर भी खूब डायबिटीज देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट। साउथ ईस्ट एशियन का जो टिपिकल फिनोटाइप है वो बहुत ओबेसिटी वाला नहीं है, बट स्टिल ओबेसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट and it is a major driver of persons who are developing type 2 diabetes. If I just put the cluster of type 2 diabetes patients, different patients, I am putting out insulin type 1 diabetes out. Other than that, we have some young diabetic persons who have insulin deficiency. उसके अलावा ज्यादातर लोगों को, करीबन 50 से 60% लोगों को इट इज ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज। अभी जो ओबेसिटी का जो रेफरेंस वैल्यू है वो साउथ ईस्ट एशियन और वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए अलग अलग है। हम यहाँ 25 से ऊपर वालों को ओवरवेट और 30 से ऊपर को ओबीस कहते हैं, लेकिन वो 2.5 बीएमआई कम है फॉर एशियंस के लिए। यानी हिंदुस्तान के अंदर आपको 27.5 से ऊपर के लोगों को ओबीस कहना पड़ेगा और 23 से ऊपर के लोगों को ओवरवेट कहना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है कि ज्यादातर लोग 25, 26, 27 बीएमआई के साथ घूम रहे हैं। सो यू नो मोस्ट ऑफ पर्संस जिनका हम एवरेज बीएमआई यदि देखते हैं वेस्टर्न इंडिया में, खास करके साउथ इंडियन एंड ईस्ट इंडिया के अंदर स्लाइटली बीएमआई एवरेज लोगों का कम है। And above the age of 30, we are seeing now the BMI of roughly 27, 28. And many of them who develop diabetes. So diabetes के पीछे obesity का एक बहुत important reason है, sedentary lifestyle है, और जैसा आप बात कर रहे थे कि हमारी जो डाइट का पैटर्न है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ओबेसिटी होने का मुख्य कारण है कि उनका फैट कंटेंट या तो ज्यादा है या वो फैट को कम करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं जब वो कहते हैं हम तो डाइट कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी लूखा फलका खा रहे हैं, लेकिन जो आप लूखी रोटी खा रहे हैं विदाउट घी के बिना, वो 4-4, 6-6 खा जा रहे हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द डाइट है वो बहुत ज्यादा है और वो भी ओबेसिटी होने का बहुत मुख्य कारण है। So obesity or diabetes is very closely linked disease, and now we call it diabesity, a new term which is like diabetes with obesity, we call it diabesity. And we are working very closely with our friends who are dealing with obesity, and also we have a dedicated society other than our diabetes society, which is a Indian obesity society, जहाँ पर obesity के surgeons, obesity से related physicians, nutritionists, हम लोग सब साथ में भी काम करते हैं to tackle this problem. Because if we prevent obesity, probably we are preventing many more diseases. जैसे डॉक्टर साहब शिशिर भाई ने बोला कि उनकी ओबेसिटी निकलने से इवन उनको डायबिटीज और थोड़ा सा किडनी के ऊपर असर था, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, सब कुछ रिवर्स हो गया। सो यदि हम ओबेसिटी को रोक ले तो ये बीमारी आएगी ही नहीं, और किसी को यदि आ भी चुकी है और अर्ली स्टेज में 2-5 साल के अंदर इफ दे कैन गेट रिड ऑफ दिस ओबेसिटी और द एक्स्ट्रा वेट विच दे हैव, प्रोबेबली ये सारी बीमारी को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो डायबिटीज एंड ओबेसिटी बहुत क्लोजली लिंक्ड डिजीज है। Obesity is the major driver for us to develop the diabetes in our country. We are having highest number of persons with obese diabetes in the world after the China, so second highest in that. But obesity के अंदर भी हमारा वर्ल्ड में तीसरा नंबर है। US के अंदर highest number of the persons with obesity, the second highest is in China, and third highest in the world we are the one in India. So obesity in our country is increasing also the way which is very, very alarming. And this is a bigger pandemic, as you were rightly saying in your few words which we had talked in introduction, that obesity is really a major pandemic. But the problem is it is under-recognized. Correct. People are less aware about it. And they call if somebody is having the weight of around 95 or 100 or 105, आप healthy हो, you know. So that sort of word which we are using. घर से हो type के terminologies use होते हैं. We don't talk about that कि you are obese. But, so that's a problem also. We have to understand, we have to accept it, and we should understand that it can be prevented, it can be reversed, and now there are measures like a bariatric surgery where something you can do and everything can be reversed. Those patients whose BMI is more than 30 with diabetes and who are not having good control of diabetes. Right. So I was about to come to that question, that when somebody should consult a
and bariatric surgery or bariatric surgeon for an obesity problem? हमने उसके लिए एक इंटरनेशनल कंसेंसस था जिसके अंदर ओबेसिटी सोसाइटी के भी पार्टनर थे, मैं उसको डायबिटीज इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा था, मोफी भी था पार्ट ऑफ दैट. सो देयर इज ए कंसेंसस दैट डायबिटीज जिन लोगों को बीएमआई 30 से ऊपर है और कंट्रोल नहीं है रेगुलर वे में, दे शुड गेट द सर्जरी. अगेन इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में कहूंगा, इंडिया के अंदर BMI 27.5 we have to consider with uncontrolled diabetes. I mean, on a regular basis, whatever the best medication which you can give to them, still the sugar is not getting control. A bariatric surgery should be considered as a choice. Now, ये हमारी गाइडलाइन में भी आ गया है. हमारी इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन was part of that consensus also. Diabetes India was also part of that consensus. उसके अलावा अभी आप यदि लेटेस्ट गाइडलाइन देखिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, हमारी इंडियन डायबिटीज गाइडलाइन की, तो उसमें भी हम ये बात करते हैं कि जो आप रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, यू आर डूइंग द बेस्ट थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर भी आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, सो दिस इज वन ऑफ द चॉइस, एंड दैट चॉइस आई थिंक फिजिशियन शुड मेक इट वेरी पॉजिटिवली टू कंसिडर, एंड दे शुड रिफर द पेशेंट फॉर bariatric surgery too. But if somebody is having diabetes with BMI of more than 32 in Indian condition and 35 in a Western condition, so they are otherwise also a very strong candidate for considering bariatric surgery for their reversal, for a better control, and for prevention of other diabetes related complication in that person. So this is a statement, a position statement, and a consensus has been made where all the experts, not in the field of only from bariatric surgery or bariatric physicians, even endocrinologists, diabetologists, and different organizations from all over the world, we have come out with this consensus, and it is well established fact, and we get a lot of benefit also. Like शिशिर भाई जो बता रहे थे, जो उनको फायदा हुआ वो हमारे सभी पेशेंट को होगा यदि वो राइट टाइम पर अपने डॉक्टर्स की बात मान के और सर्जरी करा ले सही समय पर, और उसके बाद में भी जो उन्होंने लाइफस्टाइल अपनी चालू रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज ये रिवर्स नहीं होगा. तो उन्होंने ये अपनी समझ लिया कि भाई मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी, तो अब वो रेगुलर साइकिल भी कर रहे हैं, खाना भी कंट्रोल में कर रहे हैं, अपना डायबिटीज भी वापस नहीं आने दिया है और अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस. दैट्स अमेजिंग. सो जैसे हम यहाँ पे ओबेसिटी और बैरियाट्रिक सर्जरी की बात कर रहे थे, मुझे बात करनी है डॉक्टर नरवारिया से. सर, आपसे जानना चाहूंगी ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी है, व्हाट इज इट? फॉर अ लेमैन दो चीजें हैं, एक तो बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है, और दूसरा जैसे डॉक्टर साबू की बात में बहुत ज्यादा BMI का जिक्र आया. व्हाट इज BMI? सो बॉडी मास इंडेक्स, BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो कैलकुलेट किया जाता है हमारा वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. बहुत ही सिंपल फार्मूला है. आप जितना वेट है उसको आपकी हाइट है उसका मीटर में ले लेते हैं. जैसे 1.7 मीटर हाइट है तो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7 तो उसका स्क्वायर हो गया, और उसको आप अपने वेट से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका BMI आएगा. BMI नॉर्मल, जैसे अभी अंशी ने ऑलरेडी बताई दिया, नॉर्मल BMI और किस पर डायबिटीज करनी चाहिए. रही बात बैरियाट्रिक सर्जरी की, तो बैरियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें हम इंटेस्टाइन और स्टमक की साइज एंड उसकी एब्सॉर्प्शन की लेंथ को मॉडिफाई करते हैं. इसीलिए दो तरह की होती है, एक तो रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी होती है, दूसरी माल एब्सॉर्प्टिव सर्जरी होती है, और देयर इज अ थर्ड ऑप्शन व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एज वेल एज माल एब्सॉर्प्शन. तो रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी में वी डू स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, दैट इज जस्ट रिड्यूसिंग द स्टमक कैपेसिटी फ्रॉम दिस साइज टू से दिस साइज. तो उसको हम स्टेपलर्स की मदद से स्टमक की साइज को कम कर देते हैं आफ्टर पुटिंग ए साइज through the mouth, which will decide the size which will remain inside, and बाकी का जो एक्स्ट्रा पोर्शन स्टमक का उसको हम स्टेपल करके काट के निकाल लेते हैं बाहर. That is called sleeve gastrectomy. दूसरी सर्जरी है गैस्ट्रिक बाईपास. उसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं. एक होता है रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें हम स्टमक की कैपेसिटी को एकदम छोटा सा पाउच जैसा बनाते हैं, दैट इज अबाउट 25 to 35 cc, और उसको इंटेस्टाइन के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है जिससे कि बाकी का ओरिजिनल स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ड्यूडेनम वगैरह है वो बाईपास हो जाता है. इसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास, रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास. रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास है 1967 से हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में ये ओपन टेक्निक से होता था और आज हम इसको दूरबीन से करते हैं. तो जब लेप्रोस की मदद से सर्जरी होती है तो उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है. नाउअडेज वी डिस्चार्ज पेशेंट इन लेस देन 24 hours. देयर इज नो पेन, नो इन्फेक्शन, एंड दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी के हुआ करते थे पहले के जमाने, वो सब इस सर्जरी में अब नहीं होते हैं. तो ज्यादातर लोग इसके लिए अब ऑप्ट करने लगे. 1995 से ये रोनवाई गैस्ट्रिक बाईपास भी लेप्रोस्कोपी से हो रहा है. तो आज के जमाने में सारी बैरियाट्रिक सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी
लेप्रोस्कोपी से होती है, जिसमें पेन नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, और आपका जो मूवमेंट वगैरह है हम 2-3 घंटे में शुरू करा देते हैं। इसलिए हमारे पेशेंट यूजुअली 2 घंटे में चलना शुरू कर देते हैं और 4 घंटे में हम इवन लिक्विड वगैरह शुरू कर देते हैं। तो किसी को भूखा भी नहीं रहना है और विद इन 24 आवर्स हम उनको घर भी भेज देते हैं। ये एक रिकवरी बड़ी फास्ट होगी, वो बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, नए इंस्ट्रूमेंट्स जब से हमने यूज करने शुरू किए तो we could advance so much that people can go home faster. So that's amazing, no? कि कितना फास्ट हो गया है रिकवरी का प्रोसेस, और प्रोसेस इजी भी हो गया है। तो पेशेंट के लिए भी ये बहुत इजी चीज है कि वो इजीली आपके पास आ सकते हैं और बहुत जल्दी से अपना ओबेसिटी कम करवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी टाइप 2 डायबिटीज के कम होने की शक्यता है या उनके एक्सपीरियंसेस क्या है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपका ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज पर। जैसे डायबिटीज है 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, तो अर्लियर द डायबिटीज, अगर 5 साल तक की डायबिटीज है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से कुछ डायबिटीज है वो मेडिसिन से कंट्रोल होती हैं जो कि ओरल टैबलेट होती हैं, और कुछ इंसुलिन पर डिपेंड करती हैं। तो इंसुलिन वाली डायबिटीज को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ओरल मेडिसिन पे इतने पेशेंट हैं उनका डायबिटीज यूजुअली हॉस्पिटल छोड़ने से पहले गायब हो जाता है। Most of patients who are on oral medicine, they go home without diabetic medications. That's So amazing. less than 24 hours में अगर आपके कोई डायबिटीज चली जाती है तो वो बैरियाट्रिक सर्जरी में ही है, न किसी और टेक्निक से। और रही बात ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज एंड इंसिडेंस ऑफ रिकवरी, सॉरी द क्योर, तो अप टू मोस्ट ऑफ पीपल, इफ यू एवरेज आउट अबाउट 85-95% लोगों की डायबिटीज की मेडिकेशंस हम बंद कर पाते हैं सर्जरी के बाद। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे सर्जरी कराते हैं। कई बार लोग टाइम लेते हैं, बाहर से इतना इंसुलिन दिया जाता है कि आप पूरे इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हो, पैंक्रियाज अपना काम करना कम कर देता है। उसके बाद आप बैरियाट्रिक सर्जरी करें तो उसको बेनिफिट तो होता है, लेकिन हो सकता है कि 100% उसको हम क्योर ना कर पाए, बट वो इंसिडेंस बहुत ही कम लोगों का होता है। ज्यादातर लोगों हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि यस इनका पैंक्रियाज काम कर रहा है और इसके ऊपर बैरियाट्रिक सर्जरी काम करेगी। दूसरा बेनिफिट इस बैरियाट्रिक सर्जरी का होता है, वो जब हम खाना खाते हैं तो जैसे स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाता है वहां से कुछ हार्मोन पैदा होते हैं और ये हार्मोन्स अपने पैंक्रियाज को कंट्रोल करते हैं। तो इनको हम इंक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। अगर किसी तरह से हम इस पोर्शन को बाईपास कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग के भाग को, तो ये हार्मोन्स है पैदा नहीं होते हैं जो कि पैंक्रियाज को कंट्रोल करते हैं। तो उससे आपकी डायबिटीज है वो जल्दी चली जाती है। तो हमें जो सर्जरी डायबिटीज वाली है वो इस तरह डिजाइन की जाती है जिससे कि हम उनका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का भाग है ड्यूडेनम, उसको हम बाईपास कर दें, जिससे कि ये हार्मोन्स पैदा ना हो और उनका पैंक्रियाज अपना नॉर्मल इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी 100% फायदा तो होता ही है। कौन से लेवल पे होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या उसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है। और उसके भी आजकल हम प्रेडिक्ट करने के वो होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। वी कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट कि इस पेशेंट का पैंक्रियाज इतना काम कर रहा है और हमें इतने % इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो उसको डायबिटीज सीवियरिटी स्कोर कहते हैं, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस और पेशेंट को देखने के बाद। और उसके बाद हम प्रेडिक्ट कर कह सकते हैं कि यस आपका डायबिटीज के क्योर होने के चांस 85%, 95% या 100% है। दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ डॉक्टर भंडारी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल बिलीविंग इन मिथ्स अराउंड बैरियाट्रिक सर्जरी, और इसकी वजह से वो लोग बैरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन अवॉइड करते हैं। So if you can, just throw some light on what are the kind of myths that people believe around bariatric surgery. सबसे पहले तो इस इतने इम्पोर्टेंट शो में इनवाइट करने के लिए। बैरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इतने सालों बाद भी इसकी इतनी इम्पोर्टेंट सर्जरी है जिससे कि वेट लॉस होता है, अभी इसका अडॉप्शन हमारी कंट्री में उतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। तो सबसे पहला मिथ जो है वो तो सेफ्टी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ नॉट अ वेरी सेफ सर्जरी। और आप यूजुअली ये देखेंगे कि जब भी कोई सर्जरी की बात करता है तो ऑब्वियसली जनरल पब्लिक में उसको लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन दे टॉक अबाउट बैरियाट्रिक सर्जरी दे फील कि इट्स नॉट वेरी सेफ, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो स्टडीज अभी पब्लिश हुई हैं बड़े बड़े जर्नल्स में, उसमें बैरियाट्रिक सर्जरी को हिस्टेरेक्टमी या गाल ब्लैडर सर्जरी से भी कम रिस्क वाला माना गया है। तो बैरियाट्रिक सर्जरी हैज लेस रिस्क इवन देन अ गाल ब्लैडर सर्जरी।
मतलब अगर हम 10 सर्जरीज को उठा लें जो कॉमनली हर किसी के घर में लोगों को पता होती हैं, अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ले लें, हम गाल ब्लैडर की सर्जरी ले लें, हम अपेंडिक्स की सर्जरी ले लें, और बच्चादानी निकलवाने का ऑपरेशन जिसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, दीज आर वेरी कॉमन प्रोसीजर्स। इन सबसे कम रिस्क है बैरिएट्रिक सर्जरी में, अगर इसमें कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो पहला मिथ जो लोगों को दूर करना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस सर्जरी में, इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। और आजकल जो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें तो वी आर डिस्चार्जिंग द पेशेंट्स इन 48 आवर्स, तो बहुत ही सेफ सर्जरी है और नॉर्मल सर्जरीज के मुकाबले भी सेफ है, नंबर पहला। दूसरा मिथ जो लोगों के मन में है, जो बहुत कॉमनली मैंने देखा है, वो सर्जरी को समझ ही नहीं पाते, वो इसको लाइपोसक्शन से कंफ्यूज करते हैं। तो ये लाइपोसक्शन नहीं है, ये जो सर्जरी है इसमें हम कोई फैट नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली लाइपोसक्शन इज अ वेरी पब्लिसाइज्ड वे ऑफ वेट लॉस, बट लाइपोसक्शन से इंच लॉस होता है। लेकिन वेट लॉस यदि आपको चाहिए और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जैसे अभी डॉक्टर नरवारिया ने बताया, आपने एक पेशेंट से भी सुना आपने कि दे हैड सो मेनी बेनिफिट्स, द मेटाबॉलिक बेनिफिट्स, तो वो प्लास्टिक सर्जरी से नहीं आते, वो बैरिएट्रिक सर्जरी से आते हैं। और ये लाइफ सेविंग सर्जरी है, ये लाइफ अल्टरिंग सर्जरी है, क्योंकि इसमें जो एनाटमी शरीर में हम बनाते हैं वो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो ये तो डायबिटीज तो एक बात है, डायबिटीज के अलावा हाइपरटेंशन चला जाता है, स्लीप एपनिया चला जाता है, जोड़ों का दर्द चला जाता है, लोगों को स्पाइन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाती है। तो यंग फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिससे उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो एक सर्जरी जो है उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ मेटाबॉलिक सर्जरी। द सेकंड मिथ इज इट्स नॉट लाइपोसक्शन, ये लाइपोसक्शन नहीं है। लाइपोसक्शन में हम कुछ इंच लॉस कर सकते हैं, वो एक प्लास्टिक सर्जरी जिसमें हम फैट निकालते हैं, बट ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिससे कि बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने लोगों से सुना है, जो ऑब्वियसली लोगों का ऐसा मानना रहता है ये सर्जरी के बाद कोई इम्यूनिटी कम हो जाती है और लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स खाना पड़ता है। बड़ा कॉमनली आजकल कोविड के बाद से लोगों ने बहुत कॉमनली इस इशू को एड्रेस किया है। तो लोगों को मैं ऐसा आपको लगता बताना है कि चाहूंगा, विटामिन्स और मिनरल्स एब्सॉर्ब नहीं होते उनके बॉडी में पोस्ट दिस बैरिएट्रिक सर्जरी। हाँ, ये जो मिथ है कि लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं, जैसा आपने बोला, एब्जॉर्ब नहीं होते और इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट ये बिल्कुल अपोजिट इसका है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद जब पेशेंट 10 से 15% टोटल बॉडी वेट लूज करता है तो उसकी तबीयत ज्यादा ठीक हो जाती है, इनफैक्ट उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अभी एग्जाम्पल आपने देखा, शेयर किया कि उनके फ्रेंड शिशिर जी ने शेयर किया कि उनके फ्रेंड की कोविड से डेथ हुई, वेरी अनफॉर्चुनेट। जबकि शिशिर जी, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने इतनी अच्छी ये सर्जरी करा के हिम्मत करी, सर्जरी कराई, और उसके बाद देखिए वो दूसरों को भी एग्जांपल दे रहे हैं। तो इट्स गुड। तो उससे मिथ दूर होते हैं कि कोविड या इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है, बैरिएट्रिक सर्जरी से तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, योर लंग्स बिकम मोर हेल्दी, यू आर लूजिंग ऑल दोज एक्स्ट्रा किलोज, डायबिटीज गोज अवे। अब आप खुद ही बताइए, अगर किसी को डायबिटीज रहेगी तो इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन रहेगा, ये तो जनरल पब्लिक को भी पता है। तो ये मैंने जो डिस्कस करे, ये कुछ मिथ्स हैं सर्जरी से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्स की बात है, दे कंफ्यूज विद द प्रोसीजर और हाई रिस्क मानते हैं। तो ये सब चीजों में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इट्स अफोर्डेबल सर्जरी और आजकल इंश्योरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज को रिएम्बर्स कर रहा है और इट इज गोइंग टू सून बिकम अ हाउसहोल्ड नेम, मुझे ऐसा लगता है। अमेरिका में इट इज द मोस्ट कॉमन इलेक्टिव प्रोसीजर। जिस तरह से भारत में मोटापा बढ़ रहा है, मुझे लगता है अब घर घर में ये होगा और बिना डर के लोग इसको कराएंगे। इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी। So there are two more myths जो कि मेरे सुनने में आए हैं, मुझे आपसे कंफर्म करना है। एक तो लोगों को ये लगता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी करने के बाद दे कांट कंसीव, और दूसरा लोगों को एक ये फियर होता है कि सर्जरी के बाद मेरे शरीर में बड़ा सा स्कार रह जाएगा और उसकी वजह से मुझे आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस। देखिए, आपने बिल्कुल अपोजिट बात की। ये जो लोग सोच रहे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट है। इनफैक्ट इतना सारा डेटा इस पे आ चुका है कि जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी रहती है, विच इज रिलेटेड टू पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और जो ओबीज फीमेल्स होती हैं, उन लोगों में जो प्रेगनेंसी है उसके होने की चांसेस और उसका रिकरेंट लॉस ना होना, ये दोनों उनके वेट पे डिपेंडेंट है। आप किसी भी यंग फीमेल को अगर आप जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट, उसको ही विल सजेस्ट सम वेट लॉस, एंड वंस पेशेंट्स का जैसे वजन कम होता है, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एंड दे इम्प्रूव। नॉट ओनली दे इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ उनके मेंस्ट्रुएशन में, बल्कि उनकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी ठीक हो जाती है। सो वेट लॉस से तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, वेट लॉस से प्रेगनेंसी नहीं होगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो ये मुझे लगता है ये सिर्फ मुझे लगता है ये मन में एक सोची हुई सी बात है. इट हैज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद द लॉजिक, क्योंकि और लॉजिक के अलावा साइंस Correct. साइंस तो क्लियरली ये कहता है कि इफ यू हैव वेट लॉस एंड पोस्ट एंड नाउ देयर इज लॉट ऑफ डेटा जो सजेस्ट करता है कि पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट्स हैव कंसीव्ड ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग द ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. तो हम Correct. लोग तो बहुत बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने से पहले लूज सम वेट, because in any case even if you do an IVF treatment and you conceive, the weight will increase only after pregnancy. So we Correct. always say them, and now awareness is increasing. Everybody knows कि इससे कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आती, इनफैक्ट चांसेस बढ़ती हैं. जो 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 दूसरी बात आपने बोली कि ये जो पेशेंट्स हैं जितने भी हमारे पास आते हैं, इन पेशेंट्स को अगर हम प्रॉपर्ली एजुकेट करते हैं वेट लॉस के लिए, इनको बताते हैं, तो आप डेफिनेटली मानेंगे कि इवन जो नॉन सर्जिकल मेथड्स से भी अगर वो वेट लॉस करते हैं तो उनको इनफर्टिलिटी में बहुत बेनिफिट मिलता है. तो सर्जिकल मेथड तो इट्स ऑब्वियसली अ थिंग व्हिच विल प्रोवाइड देम गुड अमाउंट ऑफ. जी, thank you very much, sir. This showed a lot of facts और myths को जिस तरह से बर्स्ट किया है. और डॉक्टर मुफ्ती से मुझे बात करनी है. सर, ये सर्जरी जो है बेरियाट्रिक सर्जरी, इज इट फॉर एवरीवन? कौन कौन ये सर्जरी करवा सकता है, कौन कौन ये सर्जरी नहीं करवा सकता? नमस्कार पूजा, कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर. हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू. ग्रेट. तो बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरी, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, महेंद्र भाई ने कहा, बंसी ने कहा और मोहित ने भी पहले कहा कि शिशी जैसे लोगों में की जाती है. इट इज बेसिकली मेंट फॉर दोज पीपल जिनके गाइडलाइंस जो हमारे ऑलरेडी सेट है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, कि जिनका बीएमआई अबव 27.5 है, जिनको स्पेशली जिनको के डायबिटीज वगैरह है, और जिनका बीएमआई 35 के ऊपर है या 37.5 के ऊपर है, उनको कोई कॉमोर्बिडिटीज की जरूरत नहीं. हमें एक ये मान के चलना है कि ओबेसिटी पर से एक महामारी है, एक बड़ी बीमारी है, जिसके साथ चलते हुए छोटी बीमारियां आती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मान लो, या ब्लड प्रेशर मान लो, डिस्लिपिडीमिया मान लो, स्लीप एपनिया मान लो, यूरिक एसिड मान लो, फैटी लिवर मान लो आप, के ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, या कि फिर इनफर्टिलिटी मान लो. बहुत सी अपनी यंग महिलाएं जिनको के बच्चे नहीं होते, या कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं जिनको मोटापे के कारण से संतान नहीं होती है. फिर इस रिफ्लक्स डिजीज मान लो, कि हेडेक्स भी कभी कभी. और एक चीज ये अभी हमारी साइंस में आया है कि 20 टाइप के कैंसर्स, अगर आपको मोटापा बहुत वक्त तक है तो 20 टाइप के कैंसर्स का लिंक डायरेक्टली मोटापे से है. तो जिस दिन हमने मान लिया कि मोटापा एक महामारी है, उसका इलाज करें. अब तक हमारे जहन में और लोगों के जहन में ये है कि मोटापा है, जैसे आपने पहले भी कहा कि अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, थोड़ा से मोटे दिखते हैं पर अच्छे दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं. लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि मोटापा एक हद तक आपको नीचे लेके ही जाएगा. वो सफेद ये दीमक के जैसा रहता है, सफेद एंड्स, व्हाइट एंड्स के जैसा रहता है. स्लोली इमारत को अंदर से खा जाता है, तब आपकी इमारत गिर जाती है. आप किस में ना सर्जरी करें, ये बहुत अहम मुद्दा है. तो जो लोगों को के आप एनेस्थीसिया की फिटनेस ही ना हो, तो शायद आप सर्जरी ना करें. इनमें जिनको के बहुत ही आप मान लो साइड इफेक्ट्स है, जो बहुत ही सब्सटेंस अब्यूज पे है, या तो ड्रग्स ले रहे हैं, या तो बहुत ही शराब पी रहे हैं और वो छोड़ना ही नहीं चाहते, या तो स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत ही, तो अक्सर इनसे बहुत ही तकलीफ हो सकती है पेशेंट्स को पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी. तो संभाल के आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप करें. दूसरा, जिनको के अभी संतान चाहिए दूसरे 6 महीने या 9 महीने में, तो वो ये सर्जरी से तब ना करे जिनको कि इमीडिएटली प्रेग्नेंट होना है. दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सिरोसिस ऑफ लिवर हो सेकेंड या थर्ड स्टेज, जैसे हम टाइप बी या टाइप सी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो उनके लिए ये सर्जरी हानिकारक हो सकती है. हालांकि ये भी सही है कि लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट में भी बहुत से स्पेशल केसेस, इंडिकेशंस ऐसे हैं जबकि हम सर्जरी साथ में करते हैं, क्योंकि फिर पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकता है. तो ये इंडिकेशंस है, थोड़े कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है सर्जरी के चलते. पूजा. Okay,
So is there any time period one has to wait before finally getting the surgery done? कोई टाइम की मींस अगर आपको रुकना है सर्जरी के पहले, तो अक्सर ये माना गया है कि आप एटलीस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ता थोड़ी लिक्विड डाइट करिए, जिससे कि आपकी लिवर की सूजन पे थोड़ा कमी हो सकती है। आपको आदत पड़ जाए लिक्विड डाइट की, क्योंकि इमीडिएटली सर्जरी के बाद कभी-कभी लिक्विड डाइट का फेज रहता है। सिर्फ वही टाइम रुकना है। कहीं इंडिकेशंस ऐसे रहते हैं जहाँ कि हम ये पीरियड को शॉर्टन कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्सली ये आपको सर्जन को बहुत ही सहूलियत होती है अगर पेशेंट अच्छा सा प्रिपेयर होके आता है। तो कभी-कभी उनकी डायबिटीज बहुत ही अनकंट्रोल रहती है, तो हम हमारे दोस्त जैसे कि बंसी सर आपके शो में थे पहले, उनके पास हम जाते हैं, उनको बोलते हैं आप प्लीज डायबिटीज कंट्रोल करके हमारे पास पेशेंट भेजो। किनको बहुत ही स्लीप एपनिया रहती है, जिनके मशीन से ऑक्सीजन मिलती है रात को जब वो सोते हैं, तो हमारे जो चेस्ट फिजिशियन दोस्त है उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोल करके हमारे पास लेके आइए। तब हम ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। सिर्फ ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे किडनी पे बहुत ही या हार्ट की कंडीशन बहुत ही नागुजारा है, तब हम थोड़ा वेट करके फिर ऐसे पेशेंट्स को लेते हैं सर। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि लोग समझे और जाने कि कब बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए जाना, कब नहीं जाना, कब वेट करना, एंड डॉक्टर्स लाइक यू कैन ऑलवेज गाइड देम इन अ करेक्ट डायरेक्शन। सर वी विल कम बैक टू यू इसके लिए आगे ज्यादा डिस्कशन के लिए, बट फिलहाल हम अपने एक और रियल लाइफ हीरो के पास जाते हैं जिन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी का ऑप्शन लिया और अपनी लाइफ को काफी बेहतर बनाया। We have our second hero with us, Mr. Anantha Krishnan. Mr. Anantha Krishnan is currently 46 years old. He has a traveling job and is married and has a grown-up daughter also. He is also a CEO operations of a leading educational group. तो उनके ये प्रोफेशन के हिसाब से उनका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। And he was also diabetic before 6 months of the surgery for 6 years उनको ये रहा। उनका BMI था 41.3 and he was also suffering from obesity earlier. His weight was 125.7 kg and he tried weight loss several times, but it was always hit back. He realized that his weight gain is not a lifestyle disorder, but he needs to seek medical help, and he decided to take a bariatric surgery consultation. So he met 20 odd people who have been through this bariatric surgery and those who have done this successfully. और उनके बाद उन्होंने realize किया that this can be a life-changing decision for himself, and his life expectancy depends on this bariatric surgery. So he underwent the surgery in November 2021 with the support of his family and friends, and now Mr. Krishnan is a completely new person. Let us meet him and find out how he is right now. Yes, Mr. Krishnan, कैसा रहा आपका experience? पहली बात तो thank you Pooja ji, thank you for inviting me here, and I'd like to thank my doctor also for giving me a new life. So ये दो स्टेटमेंट के बाद मैं शुरू करता हूँ। मैं 2-3 चीजें आप सबको बताना चाहूंगा। पहली बात तो आपने जो पूछा कि कैसा लग रहा है अभी, तो पहला मैं बोलूंगा जिंदगी गुलजार है। आज मेरी जिंदगी गुलजार है, ठीक है। इसके पहले मेरी जिंदगी क्या थी वो मुझे मालूम थी, मुझे मालूम है, which I do not want to describe now, which I do not want to talk about because that's a gone by era. मुझे आज उस कष्ट में नहीं जाना जो मैं जीता था जिस कष्ट में, right? सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जो ओबीज है या जिसके घर में ओबीज पेशेंट है, आप प्लीज कृपया ये सुने मेरी बात को। अगर कोई गिफ्ट या वरदान आप अपने दोस्त, मित्र या बच्चों को देना चाहते हो, तो दिस कैन बी द ओनली गिफ्ट सुटेबल। इट्स मोर देन अ लाइफ सेविंग गिफ्ट, ठीक है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता आपके फैमिली मेंबर्स के लिए और आपके खुद के लिए, राइट। जैसे आपने बताया, मेरी वजन करीब 125 किलो, 25-26 किलो के आसपास थी। मैंने करीब 3 दफा पिछले 10 सालों में वजन घटाने की कोशिश करी है। मैं 131 किलो तक पहुंचा हूं और ऑसिलेट करता हूं बिटवीन 131 किलो, करता था इनफैक्ट 131 किलो से लेके 120 किलो, 118 किलो तक। किसी भी सूरत पे इंसान कुछ भी करके 10% से ज्यादा सेल्फ एफर्ट से वेट लॉस नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर, मैं करके देख चुका हूँ। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान हूँ,
राइट। मैंने स्मोकिंग जैसे चीजों को खुद क्विट करके विदाउट एनी सपोर्ट क्विट किया है और लाइफ लॉन्ग क्विट किया है, तो आप जान सकते हो कि मेरी विल पावर क्या है। उस विल पावर के साथ भी मैं 10% से ज्यादा अपनी बॉडी वेट को रिड्यूस नहीं कर सका, ठीक है ना, पहला। दूसरा, डायबिटीज इज अ स्लो किलर। मैं 5 साल से डायबिटीज से जूझ रहा हूँ। It started with a very basic thing like taking 1 pill a day. It went on to 5 shots of insulin per day. ठीक है, ये लाइफ को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है डायबिटीज, ठीक है। कोई इसको मामूली तरीके से ना ले। अगर आपके फैमिली मेंबर को डायबिटीज है तो इसको मामूली समझ के छोड़े नहीं वहां पे, राइट। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, मैं डॉक्टर साहब ने कहा था कि बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें डायबिटीज की दवाई नहीं चाहिए होगी। एंड Dr. Saab himself came and checked on me at least twice that day evening. And मेरी सर्जरी होके 6:30 बजे मैं बाहर आके अपने रूम में आया और 9:30 बजे मेरी रीडिंग ली गई थी और 9:30 बजे डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि you do not need a diabetic pill at least from now onwards. Wow. So मेरी दवाई of diabetes stopped on the day of surgery. Wow. So तब से मेरी my HbA1c level on the day of surgery in the morning was 10.4. Today my HbA1c level is 5.8. तो सर पहले आप कितने इंसुलिन लेते थे दिन तो दिन में मेरे 5 शॉट लगती थी मैम इंसुलिन के। और उसके बाद you did not need any diabetes उस medicine. दिन जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, उस दिन शाम, उस दिन रात से मुझे डायबिटीज की दवाई बंद हो गई। Wow, that's amazing. Right? Number 1. Number 2, ये it's a lifestyle change in itself, ठीक है। So दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी लाइफ को एक नया मीनिंग मिलेगा, ठीक है। आप जो जो जिंदगी में नहीं कर पाते थे वो सब कर पाओगे। मैं बड़ी छोटी छोटी सी एक मोटे इंसान की ख्वाहिशों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जो हर मोटा इंसान करना चाहता है लेकिन कभी कर नहीं पाता, उसके वजह से फ्रस्ट्रेट होता है, उसके वजह से दूसरों से सोशली अपने आप को बॉयकॉट करता है। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको रेडीमेड कपड़े मिलने शुरू हो गए। तीसरे महीने से, आपकी जिस दिन सर्जरी होगी उसके तीसरे महीने से आपको, मैडम आपको मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड, 20 साल से मैं रेडीमेड नहीं खरीद पाया, ठीक है। मुझे कपड़े का बहुत शौक है और मैं 20 साल से रेडीमेड नहीं खरीद पहन पाया हूँ। मैं हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम माई लोअर्स से लेके मैं अपवर्ड्स, माई ट्रैक्स, हर चीज बनवाया करता हूँ। आज की डेट में मुझे हर चीज रेडीमेड मिलती है। मैं कहीं भी वॉक इन करता हूँ, आई पिक अप माय चॉइस ऑफ माय रेडीमेड्स एंड आई वेयर इट टू माय हार्ट्स कंटेनमेंट, राइट, पहला। दूसरा, नींद बड़ी जबरदस्त आती है। क्या बात है, ठीक है। जो पहले नींद नहीं आया करती थी, आप दवाइयां लिया करते थे, करवटें लिया करते थे, दोपहर को उठ के, रात को 12-2 बजे उठ के फ्रिज में खोजा करते थे खाने पीने के लिए, वो सारी चीजें आपकी बंद हो जाएगी। आप सोएंगे और सोते ही 10 मिनट में आप सो जाएंगे और अगले दिन सुबह फ्रेश होके उठेंगे। आप मेरे घर से जो मेरा दूध का काउंटर है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं मैम, लेकिन एक मोटे आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे घर से दूध लेने का जो काउंटर होता है वो 20 कदम का काउंटर है। उसके लिए मैं गाड़ी यूटर्न करके 1 किलोमीटर गाड़ी चला के दूध लेके घर आया करता था। आज मैं 5 से 7 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ। उसके अलावा डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से 1 घंटा जिमिंग भी करता हूँ। और जिस दिन मैं 5 किलोमीटर वॉक नहीं किया, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अभी भी मैं दिल से बताऊं, 7:20 हो रहे हैं और मेरी घड़ी पे नजर है कि कब ये सेशन खत्म होगा और मैं कब वॉक करूंगा और कब जिम करूंगा। आपके लाइफ में सबसे और एक बड़ी बात, खास बात मैं आपको बताऊं, मन ऐसा करता है कि जहां भी देखो वहीं पे आईना लग जाए। आपको अपने आप को देखने में इतना मजा आता है कि कोई कहने की हद। दूसरी बात, घर पे एक मैंने वेइंग मशीन लिया हुआ है और हर दिन मैं चेक करता हूँ, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन में एक बार चेक किया करो, काफी है। मैं हर दिन चेक करता हूँ और जिस दिन भी मुझे थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो मैं अपने डाइटिशियन को फोन करके तंग करता हूँ। My dietitian is also equally happy addressing my queries. And मैंने 3.5 महीने में करीब 27.4 किलो कम किया है। Oh my God, that's amazing. मेरी पूरी की पूरी वार्डरोब चेंज हो गई है। मैं पतले इंसानों में आ गया हूँ। कुछ दफा तो 2 दफा तो ऐसा हुआ है कि इंसान मेरे सामने से गुजरा है और मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वाह, क्या बात है। लाइफ इज अ टोटल चेंज और इतनी पॉजिटिव माइंड फ्रेम रहती है। ऑफिस में आने का मन करता है, ऑफिस में लोगों के साथ मस्ती मारने का मन करता है, काम करने का मन करता है। घर पे जाओ तो आपकी वाइफ खुश, आपके फादर खुश, आपकी बच्ची खुश।
So that positivity shows on your face what you are talking and what you are feeling right now. You are truly an inspiration to so many people. मैम मैं बता तो रहा हूँ आपको, अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है तो वो ये है। तो जिसको हमारे हिंदू मिथोलॉजी में बोलते हैं ना पुनर्जन्म, शायद यही है वो पुनर्जन्म, इसी जन्म में पुनर्जन्म जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारे डॉक्टर्स की देन है, ये हमारे डॉक्टर ने हमारे को दिया है। So how many kgs did you lose during this? दो तीन चीजें मैंने नोटिस जो करी है, जो आपने बाकी सब डॉक्टर से पूछा, मैं आपको उनका भी मैं रीजन बताना चाहूंगा, आंसर बताना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ है। आपने जो अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि स्कार रहता है क्या? हाँ, हाँ। स्कार में आपको बताऊं, मेरे केस में 4 छोटे छोटे होल्स हुए थे मेरे पेट के इर्द गिर्द, मतलब मेरे नेवल के इर्द गिर्द 4 होल्स किए गए थे, बहुत छोटे छोटे से, राइट। उससे पहले मैं आपको बताऊं, इट इज अ वॉक इन एंड वॉक आउट। आप हंसते खेलते अंदर जाओ, आपके डॉक्टर साहब आपको हंसते खेलते एनेस्थीसिया देंगे, आप उसके बाद हंसते खेलते बाहर आओगे और अगले से अगले दिन आप घर जाओगे, ठीक है। और फिर जिंदगी खुशहाल है, उसके बाद जिंदगी खुशहाल रहेगा। और जिस दिन आप घर जाओगे, छोटे से जैसे बैंडेड लगती है, 4 छोटे छोटे बैंडेड आपके पेट में लगेंगे। एक हफ्ते बाद जब वो बैंडेड खुलेंगे आपके, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, एक छोटी सी लकीर, जैसे हम लिखते हैं एल, अगर लिखते हैं तो कैसे एक लकीर है, वैसे एक लकीर देखेगी। महीने भर बाद उसमें से 3 लकीरें मिट जाएंगी, आपको 3 लकीरें दिखेंगी नहीं। फिर एक छोटा सा जैसे फोड़ा होता है, और फोड़ा ड्रेन आउट करने के बाद एक छोटा सा काला जैसे होता है बॉडी के स्किन के ऊपर, वैसे एक छोटा सा दाग रहता है, वो भी 6-7 महीने में चला जाएगा। आप 6 महीने के बाद आपको कोई देखे तो आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपकी सर्जरी है, ठीक है। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया था, जब आप वापस जाओ तो ड्राइव करते हुए जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उतनी साहस नहीं कर पा रहा। मैं हफ्ते भर बाद ड्राइविंग शुरू किया, और मैं आज की डेट में भी करीब 150-200 किलोमीटर बड़े खूबसूरती से ड्राइव करता हूँ। मजा पता कब आता है मैम? जब आप हर हफ्ते देखते हो कि आपकी स्टीयरिंग और आपके पेट के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। पेट आपकी स्टीयरिंग को टच होती है ना, अभी एक उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, अब इंसान ऐसे गिनता है कि कितनी उंगली। इंसान जिस इंसान ने अपने बेल्ट कभी देखी नहीं, अपने आंखों से पहना हुआ, वो इंसान अपने बेल्ट को भी देखेगा और सराहेगा। मतलब लाइफ इतनी बढ़िया, मतलब यू फील सो गुड अबाउट द होल थिंग, राइट। आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी। मैं एक जीतता जाता एग्जांपल हूँ आपके सामने हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नहीं खा सकते हो। मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी। जो मेरा पेट जितना बड़ा है, जितना मुझे खाना चाहिए, मैं सिर्फ उतना खाता हूँ, और मेरा वेट लॉस भी होता है, और मैं जिम भी जाता हूँ, मैं सारा काम भी कर सकता हूँ, और माइंड फ्रेम भी बड़ी पॉजिटिव हुई है। My family is absolutely happy about it. जी, बहुत खूबसूरती से आपने पूरी चीज को हमें समझाया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लेके समझाया है, जो कि डे टू डे रूटीन में लेमैन हर रोज फील करता है। पहले और बाद में आप में क्या फर्क आया? सर, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। और डॉक्टर बंशी साबू हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मुझे पूछना है, सर, व्हाट विल बी योर मैसेज to obese and diabetic people? So once again thank you। और बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा कि ओबेस एंड डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आप क्या मैसेज करेंगे। सबसे पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, because most of them, the obese people, they don't accept that they are having a disease because of obesity। सेकेंड चीज, यदि उनकी क्या रेंज के ऊपर ओबेसिटी और क्या स्थिति के ऊपर उनकी डायबिटीज है, हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ में उनका डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है, और साथ में अदर कोमॉर्बिडिटीज कैसी है, उनको ऑलरेडी डायबिटीज के साथ क्या स्थिति में है वो। ओबेसिटी की रेंज, जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान के लिए हम ये कहेंगे जिनका BMI 27.5 से ऊपर है, और यदि उनका जो हम रेगुलर मेडिकेशन दे रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जो ट्राई किया है, उसके साथ में भी उनका डायबिटीज अच्छा कंट्रोल नहीं आ रहा है। अच्छा कंट्रोल का मतलब है A1C 7 से नीचे, और यदि उनका ओबेसिटी के अलावा जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रेंज में काफी है, डिस्लिपिडीमिया कंट्रोल नहीं आ रहा है, हाई रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या डायबिटीज के कारण ऑलरेडी माइक्रोएल्बुमिन और मैक्रोएल्बुमिन प्लस में है, तो यानी हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस की ओर बढ़ रहे हैं। डायबिटीज भी बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, और उनका BMI भी
ओबेसिटी वाली रेंज जो इंडियंस के लिए 27.5 है, दे कैन बी गिवन द चॉइस। लेकिन डेफिनेटली दोज पेशेंट्स जिनका BMI 32 के ऊपर है और उन पेशेंटों का इवन ये कंट्रोल है, उसके बावजूद भी ये सारी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है। हो सकता है आज उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं है, आज उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, या आज उनको लीवर का इश्यू भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनको आने की संभावना तो है ही। तो दे आर द राइट कैंडिडेट वेयर वी शुड आस्क देम कि दिस इज वन ऑफ द चॉइस फॉर देम टू गेट द सर्जरी। यहाँ सर्जरी के हमको उनको एडवांटेज समझाना पड़ेगा, हमको ये तो कहना ही पड़ेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको कंटिन्यू रखना ही है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर कि आपकी डायबिटीज शायद संपूर्ण रूप से रिवर्स हो जाएगी, या बहुत कम मेडिकेशन के साथ में हम आपको डायबिटीज की मेडिसिन के साथ हम लंबा रख सकते हैं, और आपके जो कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है वो काफी हद तक रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी या डिले हो जाएगी। सो ये मैसेज बहुत जरूरी है हमारे डायबिटीज एंड ओबेस पेशेंट्स के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट वंडरफुल मैसेज। डॉक्टर मुफ्ती हमारे साथ है। सर, आपसे भी मुझे ये सेम सवाल पूछना है, आपका क्या मैसेज है? और एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे इस साल का वर्ल्ड ओबेसिटी डे का थीम जो है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, उस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? हाउ एवरीबडी शुड एक्ट टुगेदर टू प्रिवेंट ओबेसिटी और गेट आउट ऑफ दिस पैंडेमिक? पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे पे आप ओबेसिटी को एक बीमारी मान लीजिए। जिस दिन से आप मान लोगे तो वी विल ऑल बी एबल टू एक्ट टुगेदर, बिकॉज देन यू विल गो एंड सीक एन ऑप्शन। आप डॉक्टर की सलाह लोगे। जब तक आप बीमारी नहीं मानोगे तब तक आप ये तरीका दूसरा तरीका ढूंढते रहोगे इस बीमारी का। दूसरी चीज ये है कि इफ यू आर ओबीस, डू नॉट लेट इट रॉब यू फ्रॉम लाइफ, do not let it take away from life. Today we have a lot of options. आज दवाइयाँ है, बहुत सी अच्छी पावरफुल दवाइयाँ है, बहुत से अच्छे लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस है, लेकिन अगर ये सब फेल हो चुके हैं तो then bariatric surgery is that light at the end of the tunnel. Please, आप don't allow it to rob you of living the rest of your life happily just because आपने अफवाहें सुनी है इस सर्जरी के बारे में। Actually अफवाहों का ये चीज रहता है कि बहुत से लोग जिन्होंने सर्जरी करवाई है वो नहीं बताना चाहते लोगों को, बिकॉज इट्स नॉट मैस्कुलाइन टू और इट्स नॉट वेरी माचो टू से मैंने सर्जरी करके वेट लॉस किया है। सिर्फ उस कारण से वो लोगों को बताते नहीं है कि मैंने सर्जरी करवाई है। तो अक्सर कहते ये डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, महेंद्र भाई के पास चले जाओ या मोहित के पास चले जाओ, वो अच्छे डॉक्टर है, मैंने तो सर्जरी नहीं करवाई, मेरा वेट लॉस ऐसे ही हुआ है, लेकिन वो अच्छे से डॉक्टर है। तो आई थिंक समझ जाने का that they have gone through the surgery। और एक मेरा मैसेज लोगों के लिए है, प्लीज डू नॉट स्टिग्मेटाइज लोगों को जिनको मोटापा है उनकी तरह। दे डोंट नीड योर सिंपैथी, दे नीड योर एम्पैथी। प्लीज बी एम्पैथिक टुवर्ड्स देम। वो ज्यादा खा के मोटे नहीं हुए। तो जिस दिन से आप ये रिकॉग्नाइज करोगे कि आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव या आज नजदीक में कोई सिर्फ खा के मोटा नहीं हुआ है, उसको बीमारी हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो किसी कारणवश वो मोटा है, तो उसका इलाज ढूंढिए। प्लीज डू नॉट स्टिग्मेटाइज दैट। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे और ये सारे इनपुट्स देने के लिए। डॉक्टर महेंद्र नरवारिया भी है हमारे साथ। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका क्या मैसेज है to the obese and to the diabetic people? And as I said, the theme of this year, everybody needs to act. What will you say? I think सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मोटापा पहले बात तो अटकाना जरूरी है। तो जब आप ओवरवेट है तब से आप उस पर काम करना शुरू, नहीं कि आप 20-25 किलो। स्टार्टिंग में तो लोग जब मोटे होते हैं लोग अच्छे लग रहे हैं, और धीरे धीरे इतने मोटे हो जाते हैं कि बाय द टाइम इट इज टू लेट टू कम बैक। तो आप शुरू से ही हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए और ट्राई टू सी कि आपको हेल्दी रहना है। अगर कुछ चीजें नहीं अब आपसे हो पा रही हैं कंट्रोल, देन यू कैन ऑलवेज सीक फॉर मेडिकल हेल्प। अब नाउअडेज इवन वी हैव गुड मेडिसिन्स हु कैन हेल्प यू विथ योर डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम to reduce your weight and come back to normal. But that range is about 10 to 15 kg, not more than that. After 20 kg of weight gain, at least you need some or other kind of procedure which will reduce your appetite, and we can bring your life back to normal. One chance to go back to normal by doing this surgery, and they can maintain it by modifying the lifestyle and
they can live a healthy life, disease-free life. That is more important. Absolutely. So everybody needs to help obese people, and everybody needs to, accept them as they are, and they should help them to go for a proper treatment. क्योंकि जब पूरा इंडिया इसमें साथ जुड़ेगा तभी इंडिया फिट बनेगा. तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर. और उसके साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर बंशी साबू, डॉक्टर मुफ्ती, डॉक्टर महेंद्र नरवारिया, डॉक्टर मोहित भंडारी एंड मिस आर्या सिंह, साथ में हमारे जो रियल लाइफ हीरोज यहाँ पर जुड़े हैं, डॉक्टर कृष्णन और मिस्टर कृष्णन एंड मिस्टर शिशिर प्रकाश, इन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर इन दिस डिस्कशन. ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगा, उनको राइट डायरेक्शन में जाने के लिए एक प्रॉपर मैसेज देगा. साथ में जो मिथ्स है जो आज हमने यहाँ पर बर्स्ट किए, आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक राइट डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे जाए, कहाँ जाए और क्या करे. वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मेट्रॉनिक, जिनकी वजह से ये जो संवाद है वो पॉसिबल हुआ. तो उनके लिए ढेर सारा थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे ओवर हियर.